بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاء اللہ چھابڑی گوٹ فارم لاہور ٹاپ روف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں۔ ابھی میں آپ کو جو اپنا لیسن لرنڈ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بکریوں سے پروفٹ کمانا ہے تو ایک تو ہے اس کا طریقہ کہ آپ بریڈنگ کروائیں، اچھی بکریاں اور اچھے بکرے اچھا بریڈر رکھیں اور بریڈنگ کروائیں اور ان سے آپ بچے لیں اور بچے لے کے ان کو پال کے جو اچھا بریڈر بننے والا ہو یا اچھی پٹ بننے والی ہو اس کو آپ اپنے پاس روکیں اور ان کو ایز اے بریڈر ان کی پرورش کریں، اور جو بکریاں اچھی ہیں ان کو بھی اپنے لیے مشینیں بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ کل کی میری مشینیں ہوں گی جو مجھے پروڈکشن دے گی، اس طرح پالیں۔ اور جو بکرے آپ کو نظر آئیں کہ یہ اچھے بریڈر نہیں بن پاتے، یعنی کہ پہلے جو اچھی نظر رکھنے والے بکری فارمر ہیں وہ تو بچے کو بھی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ والا جانور اچھا بریڈر بنے گا، یہ بکری اچھی دودھ دینے والی بکری بنے گی۔ لیکن چلو 2 ماہ 3 ماہ آپ دودھ پلائیں بچوں کو، 4 ماہ تک پلائیں، بکری 4 ماہ تک دودھ پلاتی ہے بچوں کو، جیسا کہ اب بھی ہم پلا رہے ہیں۔ ابھی یہ دونوں بچے، ایک یہ ان میں سے، یہ دیکھیں یہ آگے، یہ 4 ماہ کا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ بھی کہیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 ماہ پلس کا ہی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ میری یعنی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے فارم کی پہچان بنے گا۔ اور ایک یہ ہے، اصل میں 12 جانور میرے پاس آئے تھے پچھلے کلچ میں، ان میں سے یہ میں نے 2 رکھے تھے۔ یہ میں نے اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا فارم کی خیر خیرات کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ میں نے بریڈر بنانا ہے، یہ والا ادھر ادھر ہو نا، کیوں میرے نہ لڑائیاں کرنا۔ یہ دیکھ کھیلتا میرے ساتھ، یہ دیکھ یہ میں جب بھی آتا ہوں یہ میرے ساتھ لاڑیاں کرنی شروع کرتا، وہ نہیں آتا اتنا، وہ والا نہیں آتا۔ تو کم بیک ٹو دا پوائنٹ، اچھا دودھ پلانے کے بعد دیکھیں کون سا جانور آپ نے روکنا ہے اور کون سا آپ نے سیل کر دینا ہے۔ ہر عمر میں جانور بکتے ہیں، میرے پاس ابھی بڑی بکریاں بھی سیل کرنے کے لیے ہیں۔ تو کیونکہ برسات کا موسم ہے اور برسات کے موسم میں دیکھیں نا، کچھ بکریاں وہ اوپر ہیں، ابھی ادھر تھوڑا سا اندھیرا ہے، اندر پنکھا لگا ہوا ہے، لائٹ بھی ہے لیکن کم ہے لائٹ نا، تو بڑی بکریاں ادھر ہیں۔ یہ 2 پٹھے میں نے ادھر بند کیے ہیں کیونکہ ان کو مار پڑتی ہے، اس لیے ان کو ادھر بند کیا ہوا ہے۔ یہ ویسے ہی آزاد ہیں، یہ بچے جو ہیں ویسے ہی آزاد ہیں۔ وہ 2 ذرا یہ جو کھا رہا ہے، ایک یہ ہے اور ایک وہ اوپر جا کے بیٹھا ہے، یہ ذرا کمزور ہے، تو ان کو ادھر چھوڑیں تو ان کو مار پڑتی ہے، تو اس لیے ادھر چھوڑا ہوا ہے، تو یہ چھوٹوں کے ساتھ چھوڑا ہے۔ تو یہ جو ہماری ٹاپ روف گوٹ فارمنگ ہوتی ہے نا، اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے، اب یہ دیکھیں نا، یہ ساری چھت چونا شروع ہو گئی تھی، اب ہم نے اس کو چھت ساری فرق کی ہے، اب ادھر اچھی فرق، جس طرح کی یہ چھت بنائی ہے نا، اس کو بھی اس طرح چھت کریں گے تو بندہ ڈے بائی ڈے اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے۔ او تیری گدے، تجھے بری عادت پڑ گئی ہے، مجھے گرانے لگا تھا، میں گروں گا پھر مجھے چوٹ لگے گی، ہیں بات نہیں آتا تو۔ یہ دیکھ پھر آ گیا، یہ بری بات یار، مارنے والی عادت چھوڑ دو۔ اچھا چلو میں ابھی بات کر رہا ہوں، ابھی میرے پاس نہ آنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی میں نے نا پچھلی دفعہ اپنے جو بچے تھے نا، میں نے 10 بچے بھیج دیے تھے کیونکہ میں سنبھال نہیں سکتا تھا، جگہ میرے پاس کم تھی، تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ آگے موسم چینج ہوتے رہتے ہیں تو ان کو میں سنبھال نہیں سکوں گا۔ پھر میں نے وہ بھی شاید، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ میں نے غلطی کی، میرے اچھے تھے لیکن وہ یہ نیکسٹ قربانی کے لیے شاید تیار نہ ہوتے۔ کئی بکرے 14 ماہ میں دھندے ہو جاتے ہیں، کئی 14 ماہ میں نہیں ہوتے، تو
कुर्बानी पे 2026 की कुर्बानी पे मैंने कहा शायद कि ये ना धोंदे हो पाएँ, तो मैंने वो बेचे थे, तो फिर मैंने ये लिए। अब ये मेरा तजर्बा, मैंने अच्छे नहीं लिए, मैंने कहा मैंने कुर्बानी देने हैं, क्योंकि बहुत अच्छे जानवरों का रेट नहीं लगता। ख़ासकर मैंने मंडी तो नहीं जाना होता, मैं इधर ही सेल करता हूँ, तो उसका मुल से ही नहीं पड़ता। तो मेरा पिछले साल का तजर्बा भी ये है। तो ये मैंने ना मतलब दोगले से बकरे ख़रीदे, ये मैंने 7 बकरे ख़रीदे हैं। अब ये मेरा ये तजर्बा हो रहा है कि ये ना बहुत अच्छी नस्ल के हैं, ना ये बहुत बड़े तगड़े होंगे, ना ही छोटे रहेंगे, मुनासिब से उनमें से ही हैं ये 2 भी। तो ये ज़रा बीमार शमार हो के ना थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, बाकी ये इसी एज के हैं। मतलब इसमें से ये बकरा है, ये तो धुंधा है अभी भी ना, ये वाला। तो ये इंशाल्लाह ताला साल हमारे पास रहेगा, मोटा ताज़ा होगा। बाकी इन्होंने खाना अपनी किस्मत का, जो हम मूंगी का भूसा डालते हैं और रात को हम वंडा डालते हैं, जिसमें खाल, चोकर, गंदम, मकई, चने का छिलका, जो भी मुयस्सर हो, वो फिक्स नहीं है, अवेलेबल है तो वो डालते हैं। मकई का दलिया भी डालते हैं, 4 पाड़ा मिलते हैं उसे। अच्छा, ये जो वाइट है ना, ये वाइट जो है ना हमारे घर का है, पिछले साल का। ये हमारे पास एक बकरी क्रॉस आई थी, पीछे से ही क्रॉस आई थी, उसका दोगला सा बच्चा मिला था। ये और ये एक इसकी बहन इधर से गई है, ये इसकी बहन है ये। तो इस 3 बहन भाई थे, एक हमने कुर्बानी पे, हालांकि वो दोंदा नहीं था, ये 2025 की कुर्बानी पे हमने सेल कर दिया था। तो इसमें एक ये काली पट है, ये भी हमारे यहाँ आके पैदा हुई थी। एक बकरी है हमारे पास मक्खी चीनी, वो देखो, वो अभी जवानी का इजहार कर रहा है। बकरी पट है, हम इसे ये वैसे खसी है, ये वाइट को हमने खसी कराया हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदे की फितरत नहीं बदलती, बंदे की फितरत वैसे ही रहती है। तो वो तीनों जो है ना, वो परे खड़ी हैं, जो पट्ठे हैं, वो तीनों जो ब्लैक है ना, वो पट्ठे, इनमें से भी हम सेल कर सकते हैं। अगर हम किसी को साहब को चाहिए हो तो वो बताइएगा। बकरे अलबत्ता मैं अभी ये जो है ना 1 2, वो परला काला 3, ये लाल डब्बा 4, ये 5 और वो 6 और इस तरह का एक और है, ये मैं अभी पालूँगा। मेरा अभी ये तजर्बा है कि इन दोगले से बकरों को पाल के मैं कुर्बानी पे बेचूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छी नस्ल के बकरे नहीं हैं, लेकिन ये कुर्बानी का तजर्बा मैं तो सीख रहा हूँ ना, तो मेरे इस सीखने से आप लोगों को भी तजर्बा हो रहा है, मेरी वीडियो देखने से। आप जब मेरी वीडियोस देखेंगे तो जो मैं कर रहा हूँ, आपका सरमाया नहीं लगा हुआ, मेरा सरमाया लग रहा है। तो अभी मेरा ये जो वीडियो है, इसमें मैं अपनी देखें ब्रीडर बकरियां नहीं दिखा रहा, क्योंकि उधर वैसे ही अंधेरा ऊपर ना, अभी मजबूरी की वजह, वरना बकरियां इधर होती हैं, ये बच्चे उधर होते थे परली तरफ। वो बारिश से ख़राब हो गया, वो बारिश से उसकी चादरें अच्छी नहीं थी, तो चोना शुरू हो गया। इनको हम इधर ले आए और वो बड़ी बकरियों को उधर ले गए। ब्रीडर भी हमारा अंदर है, वो उधर अंदर एक खाना लहदा बनाया हुआ, उधर बंद है, पानी शानी डाला हुआ है। तो अभी ये जो मैं तजर्बा कर रहा हूँ ना, कि मैंने बहुत अच्छी नस्ल के बकरे नहीं ख़रीदे, सस्ते बकरे ख़रीदे, अब इनको मैं पाल रहा हूँ। अभी ये जुलाई का महीना है, तो मैंने पूरा साल ही पाल लें, अगले जून तक, ठीक है, तकरीबन 10 महीने होंगे ना, जून जुलाई, हाँ 10 या 11 महीने मैंने इनको पालना है। इनमें क्या ख़र्चा आएगा और मैं क्या कमाऊंगा, वो मैं आप लोगों के साथ गाहे बगाहे शेयर करता रहूँगा, और इनकी ग्रोथ के बारे में भी। अभी परसों हमने इनकी डिवर्मिंग की है, अब डिवर्मिंग के बाद 1-10 दिन बाद फिर डिवर्मिंग करूँगा। वैसे बकरे अभी ठीक हैं, और ये तो पट्ठे हैं ना हमारी दोनों माशाल्लाह। ये हमारे दोनों ही मैंने ख़रीदी थी, मुझे सस्ती मिल गई थी। अब जैसे भी निकलती हैं और अल्लाह ताला इनमें बरकत डाले। ये अभी दोनों ही खीरी हैं। एक मेरी वो बकरी है काली, वो बैठी हुई नीचे, खा पी के नीचे बैठ जाती है कि तंग, जगह थोड़ी है ना, असल में जगह थोड़ी होने की वजह से वो उन्हें
पहले तो अकड़ के सरवाइव करना पड़ता है ना इधर। फिर वो जब कहती कि अब मुझे सुकून चाहिए, खुली जगह हो तो कहीं भी बकरी साइड पे जाके बैठ जाती है, उधर दूसरा जानवर आते आते उसको नज़र आ जाता है तो वो सुकून में रहती है। यहाँ उसे अपनी सेफ्टी ढूंढनी पड़ती है कि अब मैं सेफ़ हूँ, अब मुझे सुकून है। तो इस तरह ही करते हैं, अक्सर मैंने देखा है, बकरे भी अक्सर करते हैं। जब उन्होंने सुकून लेना होता है ना, वो खुली के नीचे बैठ जाते हैं। तो बकरे बकरियों की फितरत होती है कि ये आपस में लड़ना नहीं छोड़ते। इनकी खेल भी ये है, एंजॉयमेंट भी यही है कि एक दूसरे को घूम फिर के टक्करे मारना। और ये देखिए, ये मेरे कपड़े खा रहा था पीछे से। तो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। ये बामकसद वीडियो है, अगर आप इसको गौर से सुने, कि मैंने अपना पहले मैं ब्रीडिंग करता था, यानी कि मैंने सोचा बकरियां लूँगा, बकरियां दूध तो मुझे मिल रहा है। जब से मैंने बकरियां ख़रीदी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में मेरे पोते, मैं, मेरे बेटा वो बॉक्सर है तो वो भी दूध पीता है, घर के बाकी बच्चे भी पी लेते हैं। जो नक चढ़ाता है उसकी मर्जी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी पी लेते हैं। कहीं ना कहीं बहाने में चाय बन गई तो पी ली उन्होंने। ये नहीं है, ये सिर्फ ना हमारा वहम है और हमारा कल्चर है। वरना मैं आपको, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको एक वाक़या शेयर करता हूँ। जापान जाने का मुझे काफ़ी दफ़ा मौका मिला। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी डेस्कॉन का एम्प्लॉई था, एज ए एसोसिएट इंजीनियर। उधर से रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे कंपनी ने जापान भेजी थी असाइनमेंट पे, काम पे। कभी मैं 6 माह के काम पे जाता था, कभी मैं 7 माह के काम पे जाता था, कभी मैं 2-2 साल का प्रोजेक्ट भी उधर किया, 2.25 साल का। तो वहाँ मैंने, मेरा मतलब है, ज़ाहिर है फिर काम के बाद कोई फेस्टिवल भी, सैर वैर भी तो करता है ना। तो वहाँ एक फ़ेस्टिवल था, फेस्टिवल भी इनको मेला टाइप था। वहाँ हमें जापानियों ने इनवाइट किया, हम गए। तो वहाँ एक मुकाबला हो रहा था। मुकाबला पता क्या था कि वाइट चावल हैं, और उनके वाइट भी चावल भी मोटे होते हैं, हमारे बासमती नहीं होते। मोटे चावल हम लोग खा ही नहीं सकते, उनका टेस्ट ही और होता है। लेकिन उनका टेस्ट वो डेवलप हुआ होता है, वो शौक़ से खाते हैं। अच्छा, ऊपर से देखें, ऊपर से वाइट चावल और ऊपर से कच्चा अंडा ऊपर तोड़ना है, कच्चा अंडा डालना है और वो डिश खानी है। जो ज़्यादा डिशें खाएगा वो इनाम का हकदार होगा। और ये मुकाबला मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है। अब बताएं, जहाँ हमारे कल्चर में थोड़ा सा पकते हुए कच्चा अंडा रह जाए तो हमारे लोग नहीं खाते, वो उनको स्मेल आना शुरू हो जाती है कि वो ये तो कच्चा हो गया। हाफ़ बॉइल्ड ख़ासकर कुछ लोगों ने खाना शुरू कर दिया डॉक्टर के कहने पे। जी हाफ़ बॉइल्ड जो है ना, हाफ़ बॉइल्ड और हाफ़ फ्राई, ये अभी थोड़ा सा कल्चर है। अब देखें कि हमारे माशरे में वही अंडा है, उधर भी और वही अंडा है, वो भी मुर्गी ने दिया, ये भी मुर्गी ने दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ क्यों खाया जा रहा है कि वहाँ जब बच्चे की माँ वो बड़े शौक़ से खा रही होती है, जब भूख लग रही होती है, तो उस जो बच्चा उसके साथ बढ़ रहा होता है, पल रहा होता है, वो भी शौक़ से खा रहा होता है, वो उसको भी खिलाती है। जैसे हम अपने बच्चे को पहले रोटी की बाइट, ब्रेड की बाइट साथ खिलाना शुरू करते हैं, बोटी देते हैं, तो वो पकड़ता है, खाना शुरू करता है, चबाना शुरू करता है, तो उसको वो टेस्ट डेवलप हो जाता है और वो नखरा नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी माँ को या अपने बड़ों को नखरा करते हुए उसमें नहीं देखा, बल्कि उसको उनके चेहरे पे मज़ा दिखा। तो बच्चे में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि अच्छा ये खाने की चीज़ है, ये टेस्टी भी होगी, टेस्टी ना भी हो, बस खाने की चीज़ है, वो खाना शुरू कर देता है। तो कम बैक टू द पॉइंट, बकरी का दूध इंटरनेशनली बहुत फ़ायदेमंद है। इंटरनेशनल डॉक्टर्स और पूरे वर्ल्ड में इसको बड़ा अच्छा गिना जाता है, इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसको ये महंगा तरीन बिकता है और इसकी सारी प्रोडक्ट महंगी तरीन बिकती है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड बना दिया गया है कि नहीं, बकरी का दूध, ओहो बकरी का दूध ठीक नहीं है। अभी और भी मेरे पास एग्जांपल हैं पाकिस्तान की ही, जैसे कि हमारे पंजाब में जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ जो फारग हो जाती हैं, उनको लेयर कहते हैं। जब वो 2 साल अंडे ले लेता है पोल्ट्री फार्म वाला, तो वो उसको पंजाब में नहीं वो बिकती, यहाँ वो उसको 100 रुपये किलो भी कोई नहीं लेता, लेकिन पेशावर में जाके वो चौने रेट पे बिकती है। तो देखें, उसमें ट्रैवल भी बढ़ती है और फिर भी वो महंगी बिकती है। तो पेशावर के लोग उसे पसंद करते हैं। अब ये कल्चर हमने खुद बनाना है और ख़ुद ही ख़राब किया हुआ है हमने।
किसी का कोई कसूर नहीं है। बेहतरीन चीज़ बकरी के दूध को हम इग्नोर कर रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका बाकायदा कल्चर बनाया जाए तो ये ज़्यादा दूध इंसान की सेहत छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लो फैट होता है, वैसे हम फैशन के तौर पर लो फैट दूध ढूंढते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ ये भी कल्चर नहीं है। हालांकि यूरोप में या पूरी दुनिया में दो किस्म का दूध मिलता है, लो फैट मिलता है और फुल फैट मिलता है। लो फैट के भी लोग कॉन्शियस हैं। लो फैट मीन कि हम मोटे ना हो जाएं, हमारे में चर्बी ना ज़्यादा पै जाए। और स्किम्ड मिल्क भी मिलता है, जिसमें से सारी क्रीम निकाल ली होती है, सारी टोटल, सिर्फ स्किम्ड। लस्सी नहीं होती वो, लेकिन स्किम्ड मिल्क कहलाता वो। तो 3 तरह का दूध मिलता है। यहाँ किसी को इस कंसेप्ट का पता ही नहीं है। तो वीडियो बड़ी लंबी हो गई। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।